Hello, hi, welcome, namaste. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti, and as you all know, that I have started my podcast talk show on Joyful Journey, Your Path to Happiness. So today I have a lovely guest with me, Mrs. Devika Gupta. She is a good friend of mine. Thank you so much, Devika ji, for coming and accepting my invite. Thank you, Preeti. Thank you. It's lovely to have to be here, a part of your show. My pleasure, too. And before we start with the talk show, I would love to introduce her. Mrs. Devika Gupta is an art therapist, intuitive counselor, and relationship and esteemed coach counselor. With over 5 years of experience, she has transformed 300 lives through workshops and coaching using colors and intuitive drawings to tap into the subconscious mind. Certified in art therapy and tarot reading, she helps the individuals overcome low self esteem. Wow, what a wonderful profile you have, Devika. And Thank you, Preeti ji. It's wonderful to see hear even more from you because when someone else says, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है. no, you deserve it. You deserve it. And this is a great thing that I'm reading about you. कि एक आर्ट थेरेपी से भी जो है किसी के सबकॉन्शियस माइंड में डाइव किया जा सकता है. That is the greatest thing I have found in your profile. And Yeah. since she is a certified art therapist, so we today's talk show we are going to have on exploring intuitive counseling and art therapy. Now, before I start with this question answer ka session and talk show with Devika, I would love to ask you that can you dive us through your journey? मतलब आपकी personal life कैसी रही, क्या रहा, और how you came into this profession? Sure, Preeti. So, my journey actually started in the year 2019. When I left my job, I was in media and events industry working in Mumbai for almost 5 years. I was in hardcore corporate events, and the job there was very hectic. And that kind of made me realize that, I need something more purposeful, something more where I feel, little where my heart lies, basically. So, before going on to the next career option that I wanted to choose, there was two things that I always knew. That one, I was a very creative and art person. I mean, because the first job that I chose, that was also for creative. And the second thing is that I had a keen interest on spirituality. So I have always been an avid reader on spiritual books, and I used to go to various spiritual retreats. So I kind of knew that hey, these two things is what so कुछ mix करके कुछ तो भी करनी है. And that's how I have actually become art therapist because somewhere I know that there are very beautiful art people there who have lovely skills and they are just exemplary, right? But somehow मुझे भी पता था कि वो skills जो है वो mainstream है, but at the same time I wanted to help, bring some kind of help, some kind of transformation, some way कि जब मैं दोनों को mix कर सकूं. And that's when I have, come across to this thing called art therapy. And जब मैंने खुद में किया, अपने clients के साथ किया, sessions में किया, इसके wonderful, results समझ में आने लगे. And then I am here doing more of this kind of work. That's So lovely, it's lovely. almost 5 years now that I have done, yes. So sweet. मीन्स आपने जो है अपनी आर्ट की स्किल को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को दोनों को मिक्स करके यू गॉट इनटू दिस प्रोफेशन एंड द Yes. ब्लेस्ड सोल यू आर दैट यू गॉट टू नो अबाउट दिस ऑन टाइम. मेरा वो टाइम पे पता चल गया कि मेरा को जो है वो जो काम मैं कर रही थी, फर्स्ट जॉब जो कर रही थी, मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मुझे सेकंड में आएगा. हाँ. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे पता था कि ये दोनों मेरे इंटरेस्ट हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ही मतलब आई डेंट नो द लेबल, आई डेंट नो. इट वाज जस्ट इवेंचुअली जब मैं बहुत अपना एक्सप्लोर कर रही थी, एक्सप्लोरेशन फेज में थी, तब कुछ हिट एंड ट्रायल करती, क्योंकि पहले इसके पहले मैंने काफी सारी काउंसलिंग डिग्रीज लिया, सर्टिफिकेशंस लिए, स्पिरिचुअल काफी सारे नॉलेज को गेन किया.
then somehow I get to know कि, this is something which I really love doing it. Wow, that's great. That's great. Means it's a Yeah. new thing for me to explore, and I'm sure that who all are going to see this talk show also ना, उन लोगों के लिए भी ये चीज न्यू होने वाली है कि आर्ट थेरेपी से भी आप किसी के सबकॉन्शियस माइंड में भी जा सकते हो, एंड यू कैन कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी आल्सो, एंड यू कैन इवन हेल्प द पीपल कि आप उनकी Yes, काउंसलिंग करके उनको हील करके उनकी हेल्प भी कर सकते हो. दैट्स लवली. yes. So, in continuation to this, my second question is, what is the Hmm. difference between normal counseling and intuitive counseling? Yes. So thank you for bringing up this question, Preeti. So जो मैं करती हूँ वो बेसिकली इंट्यूटिव काउंसलिंग है. आपने पता होगा देयर आर मेनी काउंसलर्स. काफी लोग सब काउंसलर्स के बारे में जानते हैं. जनरल टर्म के अराउंड है दैट काउंसलिंग इज बेसिकली सीकिंग सम काइंड ऑफ गाइडेंस जब हम लो में है, नहीं समझ में आ रहा है. दैट्स व्हेन एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलर विल हेल्प यू. बट जो स्पिरिचुअलिटी जब मैं कंपोनेंट ऐड कर रही हूँ तो वो बन जाता है, वो हमें हेल्प करता है इंट्यूटिव वे में. सो जो हमारे सारे सेशंस है उनकी खूबसूरती ये है कि जितने भी जो भी लोगों को प्रॉब्लम जो होती है वो मैं इंट्यूटिवली उनको गाइड करती हूँ. सो फॉर दिस इंट्यूटिव फॉर फॉर हेल्पिंग देम इंट्यूटिवली मैं एक्चुअली बहुत कुछ, मेरी मेडिटेशन, मेरी साधना चलती है along with the knowledge that I have gained. So most counseling fields में क्या होता है, हम अपने बुक्स पढ़ेंगे, हम थ्योरीज करेंगे, रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, एंड द काइंड ऑफ नॉलेज दैट वी गेन अपॉन दैट काउंसलर्स आपको जो है हेल्प करते हैं. बट इधर पे लिटिल बिट ट्विस्ट ये आ जाता है दैट वी ऑल्सो हेल्प सीक हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स के साथ बात करके, कुछ हमारे डिवाइन डेटीज होते हैं, है ना, और एंजल्स के साथ, उनके साथ हम थोड़ा और ज्यादा रिश्ता बनाते हैं, थोड़ा उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हैं. जब इस तरीके की जब एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सामने वाले के लिए, व्हेन डिवाइन पावर द गॉड इज देयर इन द सेशन, तो उस सेशन की पावर भी आप सोच लो वो 10x हो जाती है. क्योंकि नॉर्मल काउंसलिंग में क्या होगा, काउंसलर अपनी पावर देख के जो है बंदे को हेल्प करेगा. बट इंट्यूटिव काउंसलिंग में इट काइंड ऑफ एक डिवाइन एलिमेंट आ जाता है. तो वो कंप्लीटली 10x कर देता है आपकी पूरी हीलिंग प्रोसेस को. इनफैक्ट आपको और ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगता है, आप और ज्यादा सेफ फील करते हैं, और इवेंचुअली आपका जो हार्ड इमोशंस हैं वो इतने आसानी से निकल जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं आता है कि हम जो है इस चीज को ओवरकम करने लगे हैं. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंट्यूटिव काउंसलिंग. लवली लवली. आपका जो नाम है ना, देविका गुप्ता के बजाय मैजिकल देविका होना चाहिए. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर शेयरिंग, तो वो तो एक मतलब मैजिक ही हो गया कि आप कनेक्टिविटी यू आर डूइंग विद द यूनिवर्स एंड देन हेल्पिंग पीपल ऑल्सो. एक डिवाइन कनेक्शन भी होता है, और साथ में आपका एक इंट्यूशन आपको पहले से ही आ जाती है, और उसके थ्रू आप जो है किसी की हीलिंग, किसी के हेल्प, किसी की काउंसलिंग कर पाते हो. दैट्स यस, यस. सीरियसली. एंड मतलब मेरे लिए तो ये चीज जो है ना, एकदम ऐसा लगे जैसे सपना है. Yeah, It बिल्कुल. seems that as if a That's dream is going on. yes, yes. This is the beauty of these sessions, and that's why I would really want people to explore this क्योंकि ये बड़ी नई चीज है, अभी भी लोगों में इस चीज को लेकर अवेयरनेस नहीं है. So that's why I thought of approaching you. Oh, sweet, and thank you so much for this lovely show. Because Yes. मेरा भी है आर्ट में ना, when I was young and being in my school time, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का इतना, पहले तो ड्राइंग आती नहीं थी. जब आनी शुरू हम्म. किया, हमारे आर्ट के टीचर ने सिखाना शुरू किया, बेटा ऐसे फिगर, मतलब एक नॉर्मल जैसे गर्ल की फिगर भी बनानी हो या बॉय का बनाना, तो वो भी ऐसे बनता है जैसा, फेस भी ऐसा सर्कल सा, Right. बॉडी रेक्टेंगल सी, तो थोड़ा वैसा जाता था. Yes. एंड वंस आई Yes. लर्न द स्किल्स कि हाउ टू डू द कर्व्स एंड सीनरीज पेंटिंग होती है या ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें थी. तो वो करने करने के Yes. बाद आफ्टर 12th आई मीन्स इंक्रीज माय इंटरेस्ट इन कैनवस पेंटिंग. मुझे कैनवस पेंटिंग Yes. बहुत अच्छी लगती है. बट आज हाँ, पता हाँ, चल रहा हाँ. है कि ये सारी चीजें जो हैं आपकी हीलिंग और काउंसलिंग में भी हेल्प करती हैं. मतलब उस टाइम पे Yes. हमारे यहाँ पे इतना अवेयरनेस उस टाइम पे होता भी नहीं था. But it's Right. good to know that these things can actually help you to get into somebody's life and help them. मतलब जहाँ भी वो Yes. स्ट्रगल कर रहे हैं. यस. Lovely. तो इंट्यूटिव आर्ट थेरेपी है वो भी ही, मतलब ये मेरी इंट्यूटिव काउंसलिंग का ही एक्सटेंशन पार्ट है.
तो इसमें भी यही खूबसूरती होती है। क्या होता है, व्हेन जनरली ऑल आर्ट आर वेरी ब्यूटीफुल इन माय, दैट्स व्हाट आई फील। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग नहीं अच्छे होते हैं, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। नॉट एवरीवन हैज स्किल्स, राइट? आर्ट आर्ट भी अपने आप में एक स्किल है। बट इंट्यूटिव आर्ट की पता खूबसूरती ये है कि आपको बहुत अच्छा आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू बी वेरी गुड इन ड्राइंग और पेंटिंग, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। इस पर्टिकुलर थेरेपी में हम जो है ना, इतने आसानी से हम बस आपको बोलते हैं कि आप जो भी मन में आए वो ड्रॉ करो। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ खींचने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं बन रहा है, वो जिगजैग बन रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि इधर पे हम स्किल्स को जज नहीं कर रहे हैं, इधर पे हम आपके पूरे भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं। और इवेंचुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, जब हम सेशन में आते हैं आर्ट थेरेपी में, यू वुड फाइंड दैट अ पर्सन हैज द पेंटिंग और द जो आपका आर्ट वर्क है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। तो इधर पे जो है इंट्यूटिव आर्ट जो है, इसमें बड़ा ही ये इस तरीके से प्ले करने लगता है, बिकॉज इट बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ पेंटिंग। Lovely, तो lovely. यस यस। Hence, you are the first teacher who is seriously not going to judge the art of anyone. Yes, definitely. But I'm yes, not of going to charge for drawing your tree or house, whatever you draw. so true. And yes, but आप उनको इतना flexible वो environment में ले आते हो कि वो जो भी बनाते हैं उसके through you can actually read their thought process and get Yes. them healed up, या जो भी उनको जैसे भी थेरेपी या जो भी उनको चाहिए हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। That's Right. lovely to know about this कि काउंसलिंग और इंट्यूटिव काउंसलिंग और इसमें फर्क क्या होता है, अब समझ में आया। अब ये व्हाट इज हाँ, इंट्यूटिव आर्ट थेरेपी, आर्ट थेरेपी इंट्यूटिवली जैसे आपने अभी बताया, ये आप एक दो केसेस शेयर कर सकते हो? एनी sure, sure. वन या Definitely, I'm coming to that. तो ये चीज हम वेरी श्योर समझ में आ गई कि इंट्यूटिव आर्ट थेरेपी में भी जो है हमारा मेन एजेंडा होता है टू स्टार्ट टॉकिंग, टू टू क्रिएट एन आर्ट पीस जो आपसे बात करने लगे। तो उस बातों बातों में हमें बहुत सारी मीनिंगफुल मैसेजेस आने लगते हैं, हमें कुछ बहुत क्लैरिटी से हमें अपनी सिचुएशन को समझ में आता है। पहले थोड़ा सा एक चीज मैं इधर पे हाईलाइट करना चाहूंगी दैट if anyone wants to come for this intuitive counseling, intuitive art sessions, why would you pick this? आपके मन में ही आएगा मैं क्यों इधर पे हूँ, क्यों राइट? करते तो हैं? एक चीज मैं इधर पे हाईलाइट करना चाहूंगी दैट दीज हमारे पास जब भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है ना, you would have observed that we kind of have 2-3 notions about it, 2-3 थॉट्स होंगे, ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दैट्स इट। 3-4 स्टोरीज में, 3-4 लाइंस में आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को समराइज कर सकते होंगे। बट when we do any kind of intuitive counselings or therapies, तो इसमें क्या होता है, हमें हमारे माइंड का 360 डिग्री व्यू पता चलता है। सो इमेजिन लाइक एक सिचुएशन में आपको जब 5 7 8 9 10 अलग अलग तरह की क्रिएटिव इंसाइट्स मिले कि ये चीज ऐसे ऐसे लिंक्ड है, ये चीज इधर से लिंक्ड है, यू डू नॉट हैव टू ब्लेम फॉर योरसेल्फ। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स कि यार शिट, मैंने शायद ये कर लिया होता, मेरे से ऐसा हो गया होता। तो जब हम अपने आप को ब्लेम करें, यस फॉर दैट मैटर सामने वाले को भी अगर ब्लेम करते हैं, इस पर्टिकुलर से ज्यादा, ब्लेमिंग गेम से ज्यादा जब हमें कुछ और इंसाइट्स मिलना चाहिए होती हैं, तब हमारे प्रकार की किसी भी प्रकार की इंट्यूटिव थेरेपीज जो है बहुत मजेदार हो जाती हैं एंड दे गिव अस अ वेरी क्लियर क्लैरिटी, 360 डिग्री व्यू हमें देती हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज सेशंस। एंड नंबर टू, कमिंग properly on like the difference between art and intuitive art therapy. आर्ट थेरेपी में क्या होगा कि जनरली अ काउंसलर वुड सिट एंड दे वुड गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ certain instructions will be there that you need to follow, है ना? ये ऐसा करो, वो वैसा करो। अगर आपको कोई मंडाला ही ड्रॉ करनी है, there would be certain instructions behind it. Intuitive sessions art therapy में यही beauty that there are no instructions. It is absolutely open. It is absolutely it is absolutely up to you, the way you want to explore, the way you want to pick any color. क्योंकि हम चाहे आपको आर्ट बनाते आता हो, चाहे आपको ड्रॉ करते आता हो, चाहे नहीं आता हो, आपके सिंगल बेतुके स्ट्रोक का भी एक मीनिंग होता है, और उस मीनिंग पे ही हम आपको पहुंचा देंगे, सिंपल। राइट। तो डिफरेंस हो जाता है, यस।
आर्ट थेरेपी में देयर वुड बी सर्टन वे दैट दे वांट टू यूज इट। अगर आप क्विलिंग यूज करेंगे देयर इज अ वे दैट दे वुड वांट यू टू डू इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोगों को जिनकी मेमोरी जो है कम होती है उनको हम सजेस्ट करते हैं दैट यूज डॉट्स, डॉट्स मंडाला आप यूज करें तो आपकी मेमोरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। सो इन दिस पर्टिकुलर नॉर्मल काउंसलिंग सेशन में देयर इज सर्टेन इंस्ट्रक्शन दैट केम टू यू कि आपको डॉट्स यूज करने हैं। बट unlike in intuitive art therapy, it will be open. We will be more on the exploring कि ऐसा है तो क्यों है और इस चीज को हम कैसे उस गैप को फिल कर सके which you feel very comfortable with. तो this is the difference, like theoretical जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. Right. And one life case which I wanted to share with you. Sure, please. So apparently, so मैं जिस तरीके से मतलब जो मेजर जो मैं केसेस लेती हूँ वो जनरली रिलेशनशिप्स को लेकर रहते हैं, रिलेशनशिप्स, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस इश्यूज होते हैं जिसमें भी. So there's one of my client that she came, she was around 24, 25 years of age. She had like a 10 years of relationship, उसके बाद फिर breakup हुआ. And breakup होने के बाद she have suddenly put on lot of weight, around 30, 35 kgs. So by the time she came, she was around, I would say 100 kgs or so. Completely, मतलब she was completely devastated कि शादी तो पता नहीं कब होगी क्या होगी. Plus बॉडी ने इतना वेट गेन कर लिया था अपने आप में, एक सेल्फ बॉडी इमेजेस, नेगेटिव सेल्फ इमेजेस के बारे में आ जाती है. And but I like, I know that she is a very intuitive and she is a nice person basically when she was really wanting to have her soulmate in her life. तो हमने ये सेशन से थ्रू इंट्यूटिव आर्ट स्टार्ट किया, इंट्यूटिव काउंसलिंग उसके साथ स्टार्ट किया. And eventually with the sessions, though she never said कि मुझे अपना body weight control करना है. She was already processing lot of bad heartbreak. But जब हमने counseling sessions वगैरह उसके साथ start किया, she automatically lost around 10 to 15 kgs without any efforts. Lovely. हाँ, क्योंकि बॉडी उतना ज्यादा ट्रॉमा स्टोर करके रखा था, उसका ऑटोमेटिकली रिलीज आउट होने लगा. एंड when she got into alignment and मेरे से मिलने के कुछ 2 से 3 साल बाद जो है उसका she has finally met the man of her life and she's happy, very happily married now. So the kind of, yes, ये किस तरीके से इंट्यूटिव आर्ट काम करता है, हम उससे वो काफी जब इनिशियल उसके सेशंस थे शी यूज्ड टू फील वेरी हैवी. उसकी जो भी ड्राइंग आर्ट वो होता था इट वाज वेरी पेनफुल, टीयर्स, पेन दिखता था. बट इवेंचुअली जब उसने इस चीज को और प्रोसेस किया एवरीथिंग बिकेम लाइक लाइटर, मोर हैप्पियर, विजन्स स्टार्टेड टू कम टू हर. And she still says कि some of my artwork जो उसने ड्रॉ किया था, she says कि मैं आज भी उसको अपने पास रखती हूँ. तो जब भी मैं लो फील करती हूँ वो मुझे आज भी एनर्जी दे जाते हैं. वो कुछ ऐसी पेंटिंग्स मुझे आज भी मुझे मैसेज दे जाती हैं जब भी मैं लो फील करती हूँ. तो आई जस्ट कीप देम नियर टू मी एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू Lovely, lovely, lovely. मी. ये भी होता है. So sweet. Means the kind of story you are sharing, it's quite emotional also. और ये मैटर करता है कि हाँ आपका इतना टाइम का एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और दूसरे में जाने से पहले आपने उस लड़की को पूरा इतना हील कर दिया that she can give her 100% in that also. So it's truly blessed you and that person who has been your student. Seriously. And the second thing what I noticed in your conversation is कि ये intuitive art जो है आपको अपने स्पेस ले छोड़ देता है ताकि आप जो भी strokes यूज कर रहे हो उसमें you can catch on the thought process of the people. मतलब अगर उनके अंदर पेन भी है तो वो भी आपको दिख जाता है, अगर उनका कोई गिल्ट है तो वो भी आपको पता चल जाता है. And accordingly give them the counselings or the therapies whatever you suggested. Yes. That's really wonderful and a very heart touching story you have shared about that girl. सीरियसली मतलब ज्यादातर लोगों को ये रिलेशनशिप इश्यूज आते ही हैं, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो. मतलब और वो ये चीज ऐसी होती है जो कम्प्लीटली आपकी जो लाइफ वे ना चाहे तो 360 डिग्री अच्छी कर दे या पूरी की पूरी डाउन कर दे. इसे डाउन सीरियसली मतलब मेरे को तो सुन के भी गूजबम्स खड़े हो रहे हैं. तो हाउ यू हैव डन दिस
एंड वो भी इतना Yes. पेशेंस के साथ होगी, इतनी स्वीट स्माइल के साथ, मीन्स इट्स Thank you. रियली इनक्रेडिबल। हाँ जी। So the next one question is that what should someone expect when they come for this session? मतलब अगर कोई सेशन के लिए आ रहा है तो उनको क्या अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं? ओके ओके। सो फ्लो तो मैंने काइंड ऑफ थोड़ा सा बता ही दिया है ना, कि जब कोई आए तो क्या चीजें जो हैं जो ऑन द टेबल्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। सो नंबर वन, यू पर्सन किसी ने बुक किया तो आप जब, हम ऑनलाइन मिल सकते हैं, आप अगर इन पर्सन चाहें तो इन पर्सन भी मिल सकते हैं। एंड देन उसके बाद कुछ मैं आपको बोलूंगी, कुछ आपके पास छोटे मोटे कलर्स या हो तो बहुत अच्छा है, क्रेयॉन्स हो या बेसिक स्केच पेन्स हो, पेन पेंसिल हो। अगर आपके पास कलर्स भी नहीं है, बेसिक पेन भी हैं, पेंसिल भी हैं, तो भी वी कैन वर्क इट आउट विद इट। ये कुछ छोटी मोटी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो वी विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लिटिल मेडिटेशन एंड देन आई वुड एक इंटेंशन हम स्ट्रॉन्ग पुट करते हैं, सो दैट कोई भी चीज आप, क्योंकि आप आ रहे हैं तो should be a certain purpose to it and the purpose need to be very clear। तो हम थोड़ा सा टाइम देते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझने में, क्योंकि जितना अच्छे से हम प्रॉब्लम समझेंगे उतना ही क्लैरिटी के साथ सोल्यूशन आएगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़ा सा हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे थोड़ा सा टाइम देके ना, उसके बाद फिर हम इंट्यूटिव आर्ट अपना स्टार्ट करते हैं। देयर वुड बी सर्टेन प्रॉम्प्ट्स जो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको कुछ कुछ करते रहना है। टुवर्ड्स द एंड यू वुड फील कि यार बॉस इधर पे कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ है, मुझे आई डू नॉट फील राइट, तो लेट अस वर्क ऑन इट। तो आपको अपने आप ही ब्लॉकेज जो है समझ में आने लगेंगे। So this is the general flow that I talk that a person goes. But yes, you should be ready to feel surprised, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा। It is full of surprise. It is full of very peaceful and relaxing as well। कुछ सेशंस ऐसे तो होते हैं जो थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़ा सा पेन ज्यादा होता है क्योंकि वो हम उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट यू वुड फील लाइट। ठीक है, तो नंबर वन, बी सरप्राइज। यू आर अ वेरी, एवरी वन आई फील इज अ पर्सन हु इज पैकेट्स ऑफ, उनके अंदर सरप्राइजेस होते हैं। ठीक है, और इधर पे आप रेडी रहे। सेकेंड इज, you would feel joyful, you would feel the best thing of the session would be that you would feel connected with yourself। क्योंकि जब हम ट्रॉमा में होते हैं, हम जब पेन में होते हैं, हम अपने आप को भूल जाते So हैं। आपने ये चीज होगी, हमके पास absolutely. सब कुछ रहेगा, ये भी उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट आज जो मैं हूँ, मैं उसको भूल जाती हूँ। मैं उसने जो इतना कुछ पेन सहा, इतना कुछ जो ट्रबल देखा, उसको मैं नहीं एम्पथाइज कर पाती हूँ। और हम एक ब्लेम गेम में या किसी और के बारे में, या हम उस बारे में, अपनी अपने उस छवि के बारे में सोचते हैं जिसने कुछ बैड डिसीजंस लिए। No matter what decisions you have taken or not taken, yet you are a loving being because you are here and you are smiling, you are sitting here, you are a courageous person. So that's what I feel. कि be ready to be surprised, be ready to reconnect with yourself। आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने आप को कनेक्ट करके, एंड ये रिकनेक्शन ही आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ दे देगा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने, जो सेशंस का मेन मोटिव होता है। So sweet, so sweet. मीन्स एक तो आपका जो सेशन है फुल ऑफ सरप्राइजेस रहने ही वाला है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई आने वाला है तो भैया सोच लो कि देविका ने तो सरप्राइज करना ही करना है आपको। और ऐसे ऐसे सरप्राइजेस खुल के आने वाले सामने जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये भी था। मतलब कुछ कुछ चीजें हमारे थॉट प्रोसेस में ऐसा होता है जो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं, बट वो सरफेस पे नहीं आ पाती। तो राइट। यही आपकी इंट्यूटिव जो आर्ट थेरेपी है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप कैसे उस चीज को जो है एक सरफेस पे लेके आओ और फिर इससे रिलीज हो जाओ। यस यस। तो दैट इज द बिगेस्ट सरप्राइज। एंड द सेकंड थिंग यू सेड कि रिकनेक्शन, मतलब जैसे हम इंसान अपने आप को भूल ही जाते हैं, कुछ छोटी मोटी गलती खुद से भी हो जाएगी तो उसमें इतने गिल्ट में रह जाएंगे कि भैया बाप रे कितना बड़ा काम कर दिया, क्या कर यस दिया ऐसा जो सामने वाले से जाए। मतलब अगर मैं बात करूँ किसी फ्रेंडशिप की या ब्रदर सिस्टर्स के रिलेशन की, तो उसमें भी छोटी 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 चीजें ऐसी हो जाएंगी जो अपने आप में गिल्ट हो, चाहे सामने वाला के दिमाग में ना भी हो, लेकिन खुद के ना दिमाग भी में ही हो। इतना कुछ इतना बढ़ा के बैठ जाएंगे ये कुछ कि ओवर थिंकिंग हमें बहुत कुछ हमारे डिमोरलाइज कर देती है। राइट राइट।
तो उस चीज को वापस से अपनी एनर्जी को वापस से वो करने के लिए इट्स बेटर कि आप इस चीज की थेरेपी में जाओ और इसको जो है Yes, अपने आप से कनेक्ट होना सीख लो। वेरी नाइस, yes. वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, जैसे आपने अभी ये इस एक केस स्टडी शेयर किया, तो कितने कितने टाइम इंटरवल्स में आपको ये सेशंस करने पड़ते हैं अगर एक क्लाइंट का अगर? ये बड़ा सब्जेक्टिव है। जनरली आई से बिटवीन 1 वीक टू 10 डेज में हम बैठते हैं, बट जरूरी नहीं है। किसी को लगता है कि वी नीड कंटिन्यूस 2-3 दिन के अंदर हमें बैठना है, क्योंकि बहुत कुछ ट्रॉमा होता है। तो ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 सेशंस वेरी नियर बाय क्लब करते हैं, मे बी इन 2 डेज वी सेट। बट कभी कभी होता है कि हम 10 डेज में कनेक्ट करते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि आई आस्क देम कि आप टेक 15-20 डेज ब्रेक ऑल्सो, क्योंकि हर एक की हीलिंग कैपेसिटी अलग होती है, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी अलग होती है ना। जैसे दवाई, जैसे कहते हैं ना, कभी किसी पे जल्दी काम करती है, कभी लेट काम करती है। तो सिमिलरली हीलिंग की इसकी भी है। हीलिंग जो है बड़ी इंडिविजुअल उसके ऊपर है, कैपेसिटी के ऊपर है। राइट। मीन्स जैसे आपका ट्रॉमा हो गया या किसी टाइप का बैगेज हो गया, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसी के पर्सन हिसाब से ही। पर्सन एंड प्रीति जी, सिचुएशन टू सिचुएशन भी मैटर करता है। कुछ सिचुएशंस हमारे बहुत ही दिल के क्लोज होते हैं एंड उधर पे ओपन अप होना, उन चीजों को लेकर बात करने में टेक्स टाइम। बट राइट। कुछ चीजें हैं जो हम लेट गो करने में आसानी होती है, तो उधर पे फिर टाइम अलग तरीके से प्ले करता है। ओके, दैट मीन्स ये तो एक पूरा टीचर की तरह वो हो गया, जैसे स्टूडेंट को वो कहते हैं ना, एक क्लास में एक स्टूडेंट एक बराबर नहीं होते हैं, तो आप हर किसी को ये एक तरीके से समझा नहीं सकते, हर ये किसी को एक तरीके से पढ़ा नहीं सकते। द सेम थिंग यू हैव दैट इन आर्ट थेरेपी, कि आप हर किसी को एक ही लेवल से या एक टाइम पीरियड में हील नहीं कर पाओगे। देख कर सकते, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। एंड एक चीज की मैं बहुत ही ज्यादा इधर पे वाउच करूंगी, जो भी किसको भी मेरे पास कभी भी बैठना हो, मेरे से बात करने, सेशंस लेने हो, तो मेरा बहुत ही ओपन एंडेड होता है। इट इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन एंड आप पर्सन एंड ऑल्सो व्हाट सिचुएशन दैट पर्सन इज। कोई भी सेट रूल्स नहीं है कि ये ही ऐसे ही करना है। इनफैक्ट काफी काउंसलर्स हैं जो बोलते हैं कि हम 1 घंटे का सेशन ही लेंगे ना, अबव दैट दे वुड नॉट वांट टू, और दे वुड हैव सम एक्स्ट्रा चार्जेस टू पे। मेरे जितने भी सेशंस है वो बिटवीन 1 to 1.5 आवर तक मैंने कंप्लीट लेवरेज देके रखती हूँ, क्योंकि मुझे आई नो बट समवन इज क्राइंग एंड ऐसे कि नहीं मैडम 1 घंटा हो गया सो दैट काइंड ऑफ brings lot of awkwardness राइट, राइट। नहीं, आप ये वो चीज नेचुरल सिचुएशन वो में मैं तो बता। इवन सामने हाँ वाला भी नहीं रुक पाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि वो अपने आप को रिलीज करे। जब ना वो रिलीज करे, बिकॉज दीज आर आल्सो द इमोशंस, यस if I talk about, these are also the emotions which has to come out in some or the other way, चाहे वो किसी थेरेपी के थ्रू आ रहे हैं या मेडिटेशन आप करवा रही है या कुछ भी आप हीलिंग प्रोसेस में उनको वो कर रहे हो। So that is a natural process and it takes the time, and blessed is the person who is going to Devika for this treatment. Right. So यस this is the thing about the case study which we have shared. अब आप ये बताओ कि जैसे अलग अलग केसेस आते हैं, तो व्हाट बेनिफिट्स द पीपल कैन गेट फ्रॉम दिस? ओके। सो नंबर वन बेनिफिट, एज आई मेंशनड, आपको आपको रिकनेक्ट फील होगा अपने साथ। नंबर टू, आपके अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा आपके पास, क्योंकि एंड स्पेसिफिकली एक्चुअली मैं अपने इंडियन फैमिलीज को लेकर बात करूंगी, क्योंकि मोस्ट केसेस जो आते हैं मेरे पास वुमेन हु आर फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड। तो मैंने देखा है दैट हमारे कल्चर में ना अक्सर हम बहुत दबाते हैं अपने अंदर की आवाज को। हमारे बड़े हैं, नहीं बोलना चाहिए, सो ये ये है, नहीं बोलना चाहिए, है ना। कई बार नहीं बोलने में हमारे अंदर इतनी ज्यादा कंडीशनिंग कर दी गई है दैट आवर ट्रू वॉइस, आवर ट्रू ओपिनियन हमें कहने में भी डर लगता है। उसको एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी या नहीं करेगी, वो तो बहुत बात की बात आ जाती है। तो ये चीज आप बिल्कुल सोच के बैठे हैं, क्योंकि कि आई एम वेरी वेरी क्लोजली अटैच टू दिस दिस पर्टिकुलर इशू, क्योंकि मैंने भी पर्सनली बहुत फील किया है। तो ये चीज डेफिनेटली है, वो जो भी मेरे पास आएगा आप समझिए कि आपकी एक्सप्रेशंस को खोलना ही है। द मोमेंट यू फील दैट, द मोमेंट यू फर्स्ट एक्सेप्ट योर थॉट्स and you take it like with confidence, automatically society and everyone would start accepting it.
तो ये मेरा है नंबर 2 टेक अवे, दैट यू वुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ओन ओपिनियन, इन योर ओन पर्सपेक्टिव्स। आप उसमें अपने आप को बहुत, आपका बेसिकली आपका अंदर का सेल्फ एस्टीम जाग चुका होगा। एंड द थर्ड इज लॉट्स ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, ये दो ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमारे गुड लाइफ की एक फाउंडेशन है। अगर आपको पॉजिटिविटी के साथ फुल ऑन अच्छे से 10 on 10 लाइफ जीना है, तो आपको ये दो चीजें आपकी लाइफ में आपकी नींव होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। तो आपको जब आप अपने एक्शंस को ओन कर पाओगे, उसके ऊपर आप रिस्पेक्ट कर पाओगे, मैंने ये कहा है एंड इट हैज सो पुट सम वैल्यू टू इट, ऑटोमेटिकली आपका खुद के लिए प्रेम जगेगा। ऑटोमेटिकली आप अपने आप के लिए फील गुड कर पाएंगे। क्योंकि ना, फील गुड नहीं होने का कई बार बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से आप देखो तो कितने सारे एपिसोड्स होते हैं जहां पर हम अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, हम लहजे में रह जाते हैं, हम सोसाइटल प्रेशर में रह जाते हैं। तो और इस चीज को भी बोलने का एक तरीका होता है। देर आर सम पीपल who say it, but they are too outspoken, they are too harsh on it. So a balanced tone, a harmonious tone is very important. तो ये चीजें जो है, ये चीजें आपके साथ सेशंस में ऑटोमेटिकली आप फील करोगे और आप अपनी लाइफ में इसमें इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हार्मनी। क्योंकि मेरा ये कहना है, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हर चीज की जिंदगी में एक बैलेंस और एक हार्मनी होती है, एक रिदम होती है। तो जब भी आप मेरे साथ सेशंस में आएंगे, आपको अपने अंदर की रिदम फील होने लगेगी। यू वुड नॉट फील दैट यू आर गेटिंग आउट बैलेंस्ड, कि कहीं पे ज्यादा बोल दी, कहीं पे मैं कम बोल दी, कहीं पे मैं नहीं उतना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई। एक रिदम हम आने लगेंगे, ऑटोमेटिकली लगता आपको फिर अच्छी लगने लगी, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इन। So sweet, and lovely takeaways you have given for this talk show also. कि और ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि जैसे हमारी सोसाइटी में इतने वो चीजें रहती हैं, टैबूज कह लो, या पहले के मतलब जो आई वोंट से कि वैल्यूज जो सिखाए गए हैं वो ठीक नहीं थे, बट वो वैल्यूज इतने ज्यादा ओवर कभी कभार हो जाते हैं कि अच्छा, मदर इन लॉ है तो नहीं बोल सकते, फादर इन लॉ है तो ऐसे नहीं जा सकते, हस्बैंड है तो उनको बुरा लग जाएगा, बच्चे हैं तो बुरा मान जाएंगे। इवन कि आप Right. रिलेशनशिप में या कि फ्रेंडशिप में हो, यार वो मेरा फ्रेंड है तो वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी या छोड़ के चला जाएगा। और उस तरीके से वो धीरे 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 करके अपने अंदर ही पाइल अप करते जाते हैं चीजों को, और वो चीज फिर कभी रिलीज ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग होते हैं आउटस्पोकन जो एकदम बोल देते हैं, वो मेरे ख्याल से वही लोग होते हैं जिनके ऑलरेडी माइंड में इतना कुछ बैठ चुका होता है, एंड दे Yes, हैव द मीन्स पर्सपेक्टिव ऑफ जजिंग द सिचुएशन बिफोर हैंड। अच्छा, मैंने ये बोला तो yes, इसने तो ऐसा बोला ही बोला जिससे पहले मैं ही बोल, yes. उस तरीके से बैंग अगर ऑन वो विकी ने बहुत ही बिल्कुल क्रक्स निकाला है हमारे कॉन्वर्सेशन का, बैंग ऑन। कि पता है, जो लोग आउटस्पोकन होते हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग व्हाट दे रियली वांट टू से, वो अपने जो घर की फाइल्स हैं वो ही बड़बड़ बड़बड़ करके निकाल देते हैं। राइट राइट, और वो उनको भी नहीं पता होता है। वी कांट से कि हाँ उनकी भी गलती है, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन इमोशन। जो सुन भी रहा है उसको भी ये चीज को समझना चाहिए कि हाँ, अगर सामने वाले ने ऐसा एग्रेसिवली बोल भी दिया तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। अगर उसने कोई गलती आपके साथ कर भी दी तो उसके पीछे उसका इंटेंशन था क्या, वो इंटेंशन सही था या नहीं। बिकॉज आई एम द Right. पर्सन हु रियली बिलीव्स इन द इंटेंशन, वेयर योर इंटेंशन गो योर एनर्जी फ्लोज। Energy goes. Very, very true. तो एक ये Yes, चीज का एक मेरे को आपके उससे एक वो भी मिला कि हाँ, आप मतलब इंटेंशन कैच करोगे, द थिंग्स विल बिकम सो इजियर फॉर यू ऑल्सो, फॉर द रिलेशनशिप्स ऑल्सो, फॉर एनी वन। एंड अगर नहीं तो फिर वो इतना क्योस कर देगा इकट्ठा कि आप कभी उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। yes, very true. Seriously, means you have given such a magical things. That's why I called you as Magical Devika. Thank you, Preeti. बड़ी spot on करके चीजें निकाल रहे हैं, which is very great to know. With the short in conversation, you definitely have lot of बिल्कुल क्रक्स पे आपकी बात करने का बहुत ही प्यारा टैलेंट है आपका। थैंक यू सो मच। एंड ये अभी जस्ट आपसे बात कर करके ही कुछ चीजें ऐसी आई हैं, बाय बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ पेरेंटिंग कोच एंड एन एनएलपी कोच ऑल्सो। तो जिस टाइप हाँ की जी। आपने बातें करी ना कि किस टाइप का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए और क्या वो रहना चाहिए, व्हाट आई कैन रीड आउट फ्रॉम द पीपल्स माइंडसेट कि हाँ, ऐसा माइंडसेट उनका बन क्यों जाता है।
और अगर बनता भी है तो उसको चेंज कैसे करें. Yes. So really very fantastic thing you are doing, and God bless you with more such blessings कि आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहो and you gain more blessings from them too. Thank you, Preeti ji. Thank you so much. So thank you so much for coming and giving such useful insights. And I'll be sharing this video on on YouTube, and the link will be shared on every social media. She will be tagged Sure. everywhere. If you have any query regarding any question or any relationship or anything, anything means anything, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो या ऑफिस के से स्ट्रेस्ड आउट हो, तो you can definitely contact her and she will be glad to help you out. Thank you so much, Preeti ji. And I would love to see you with your videos and coming up with more and more content. I would love to see that. And because I'm a new mother, I am definitely going to be there on your links So as well, your social media handles. sure. Please do. So thank you so much. And audience, thank you so much for watching this video also. Be safe, keep smiling, keep healing yourself. Thank you, Preeti ji. Thank you, my loving audience. Hope to see you and actually meet you one day. And thank you so much. Bye. Take